Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our English class. I hope you are doing well. Brothers and sisters, today we are going to learn English in different way and enjoyable way. I have prepared a beautiful song related to present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. This poem help you to understand present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense using active voice and passive voice. Brothers and sisters, tense is very important and Alhamdulillah we have started our English tenses and we have completed continuous classes also. Poem makes learning easy, increasing, memorable. So, please listen to me carefully and repeat this poem with me. Dear students, I hope you are ready. I'm going to ask you, are you ready for today's class? Yes or no? Please write in the chatting box. I'm waiting your answer. Please write in the chatting box. Are you ready to attend my today's class? May I start now? Okay, let's begin. Brothers and sisters, just now I have told you that first of all I will recite a beautiful poem about present continuous tense structure and past continuous tense structure and future continuous tense structure. Ladies and gentlemen, you know very well I started English tenses from chapter number 19, and from chapter number 20 I started teaching continuous tenses. In chapter number 20 I taught you present continuous tense, active voice, and I hope that you have remembered well the structure, conjugation, and lots of examples you have remembered. In chapter number 21st I taught you present continuous tense, passive voice. Ladies and gentlemen, and after that, in chapter number 23, I taught you past continuous tense, active voice. In chapter number 24, past continuous tense, passive voice. In chapter number 26, I taught you future continuous tense, active voice. In chapter number 27, I taught you future continuous tense, passive voice. And I have also taught you present predicate sentence, past predicate sentence, and future predicate sentence. So, till now, I have taught you 9 classes using is RM, was were, will be. So, ladies and gentlemen, when we use is RM with subjects, so you can prepare three kinds of three kinds of sentences. First is that I'm teaching, मैं पढ़ा रहा हूँ. I am being taught, मुझे पढ़ाया जा रहा है. I am a teacher, मैं एक टीचर हूँ. When you use the word was in word, you can also prepare three classes. One is that I was teaching, मैं पढ़ा रहा था. I was being taught, मुझे पढ़ाया जा रहा था. I was a teacher, मैं एक टीचर था. Ladies and gentlemen, if you use will be with any ing form, then you can say I will be teaching. मैं पढ़ा रहा हूँगा. And when you want to speak future continuous tense passive voice, you will say I will be being taught. मुझे पढ़ाया जा रहा होगा. I will be a teacher. मैं एक टीचर बनूंगा. So ladies and gentlemen, now I want to recite a beautiful poem that is about is, are, am, was, were, will be, shall be. How you can use these helping verbs, you know very well. But after remembering, memorizing this poem, inshallah ta'ala, it will be also very easy for you. So are you ready to listen me carefully? Please tell me, yes or no? I'm going to recite. I request you that please listen. I am, I was, I will be. तवज्जो चाहूँगा. I am, I was, I will be.
we are, we were, we will be. Come on bro, मेरे साथ रिपीट करेंगे आप. प्लीज रिपीट विद मी. विद तरन्नुम. तरन्नुम जिस तरीके से है ना, विद पोलाइट मेलोडियस वॉइस, वॉइस के साथ आप इसे रिपीट कीजिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ. तवज्जो दीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन अंदाज में मैं आपको एक पोएम सुना रहा हूँ. इस पोएम को याद करने के बाद आप ऑल कंटिन्यूस टेंसेस पर एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेंगे. कंटिन्यूस टेंसेस के जुमले बोलने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी. तवज्जो चाहूँगा. आई एम, आई वॉज, आई विल बी, वी आर, वी वर, we will be. माइक ऑन करने जा रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ पढ़िएगा. एक मर्तबा सब लोग एक साथ गुनगुनाएंगे. आई एम, चलिए कम ऑन कम ऑन. आई एम, आई वॉज, brothers and sisters. So just now मैंने आप लोगों को तरन्नुम में इस पोएम को कैसे पढ़ना है वो सिखाया. आई के साथ एम को यूज़ किया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस और प्रेजेंट प्रीडिकेट सेंटेंस बनाने में. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वज को प्रयोग किया जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस और ड्यूरेशंस पास्ट प्रीडिकेट सेंटेंस के जुमलों को बनाने के लिए. आई के साथ विल बी को प्रयोग किया जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस और फ्यूचर प्रीडिकेट सेंटेंसेस को बनाने के लिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, यही हाल वी के साथ है. वी के साथ प्रेजेंट के बारे में बातचीत करने के लिए आर को प्रयोग करेंगे, पास्ट के बारे में बातचीत करने के लिए आप वर को प्रयोग करेंगे और फ्यूचर यानी ज़माने मुस्तकबिल के बारे में बातचीत करने के लिए आप विल बी को प्रयोग करेंगे. अब हम चलते हैं सेकंड मिसरे की तरफ, जहां पर मैं यू और दे के बारे में बताऊंगा. आप बखूबी जानते हैं कि अगर प्रेजेंट के बारे में बातचीत करनी हो तो यू के साथ आर, और पास्ट के बारे में बातचीत करनी हो तो यू के साथ वर्ड, और अगर फ्यूचर के बारे में बातचीत करनी हो तो यू के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाएगा. यही हाल दे के साथ है. दे के साथ प्रेजेंट के बारे में बातचीत करने के लिए आर को और पास्ट के बारे में बातचीत करने के लिए वर को और ड्यूरेशंस फ्यूचर के बारे में बातचीत करने के लिए विल बी को प्रयोग करेंगे. तवज्जो चाहूँगा, पहले मैं 2 मरतबा पढ़ूंगा, तीसरी मरतबा आपकी माइक को ऑन करूँगा. 2 मरतबा मेरे पढ़ने के बाद आप मुकम्मल तौर पर तरन्नुम को कॉपी करने की कोशिश कीजिए. यू आर, यू वर, यू विल बी. तवज्जो दीजिएगा. यू आर, यू वर, यू विल बी. दे आर, दे वर, दे विल बी. आई एम, आई वॉज, आई विल बी. आई हैव पुट ऑन योर माइक. नाउ प्लीज सिंग विद मी. मेरे साथ पढ़िएगा. यू आर, यू brothers and sisters, mashallah, you have also repeated with me. Like me, it is very important for you that you should repeat. You should repeat. And tomorrow I will listen. Tomorrow I will listen from you. And you will have to recite like me. Brothers and sisters, I'm going to teach you third couplet. Third couplet is that he is, he was, he will be. And she is, she was, she will be. He is, if you are talking about present, he was when we talk about past, and he will be when we talk about future. Ladies and gentlemen, she is for present, she was for past, and she will be for future. तवज्जो चाहूँगा. He is, he was, he will be. She is, she was, she will be.
I am, I was, I will be. We are, we were, we will be. Come on bro, चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिएगा. He is, he was, he was, जो चाहूंगा. He is, he was, she was, she will be. Ladies and gentlemen, mashallah, you are singing and you are memorizing, brothers and sisters. Now I am going to teach you fourth couplet, and that is about name is, name was, name will be, names are, names were, names will be. You know very well. If you are speaking about anyone and you are using his name and he is a single, then you can say he is for present. Sorry, name is for present, name was for past, and name will be for future. And when you talk more peoples and you are saying their names, then you can say names are Zaid Amar Bakar are, names were Zaid Amar Bakar were, names will be Zaid Amar Bakar will be. So if you are speaking two names or more than two people's name, then you can say names are, names were, names will be. तो जो चाहूँगा name is, name was, name will be. Name is, name was, name will be. Names are, names were, names will be. I am, I was, I will be. We are, we were, we will be. Dear students, let's start. और अब आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे. आपकी माइक ऑन है. नेम इज, नेम was, names are, names were, names will be. Come on, bro. Names were, names are, names were, names will be. Okay, dear students, that's very good. I'm going to speak some other sentences that is about this is, this was, this will be. Listen to me carefully. This is, this was, this will be. These are, these were, these will be. This is, this was, this will be. तवज्जो चाहूँगा, एक साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे आप. This is, this was, this these are, these were, these brothers and sisters. So this was a beautiful poem about using is, rm, was, were, will be, and this is for all continuous tenses. Ladies and gentlemen, if you know we can use I am, then you can speak lots of sentences. I'm going to say that. मैं आई एम को यूज़ करते हुए बहुत सारे जुमले आपसे बनवाऊंगा. अब प्रैक्टिस करना है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस. अब मैं आपकी प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ. प्रैक्टिस करते वक्त हर तालिब इल्म पूरे तौर पर पार्टिसिपेट करें. पूरे तौर पर डियर स्टूडेंट्स आप तवज्जो दें. आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग पूरी तौर पर तवज्जो दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स. यस डियर स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग अ ब्यूटीफुल पोएम and I have recited how you can use the word is, rm, was, were, will be, and with the beautiful structures which I have explained you. Brothers and sisters, I request you that let's understand what is this. चलिए ज़रा इसे समझते हैं कि ये क्या है. Ladies and gentlemen, you know very well कि हम लोग इंग्लिश टेंसेस की बहस कर रहे हैं. ये टेंस है एंड ड्यूरेशंस टेंस हम लोगों ने लेसन नंबर 18 से शुरू किया था.
लेसन नंबर 18 से, और 18 से नहीं 19 से, लेसन नंबर 19 से हमने शुरू किया था और अब तक हम लोगों ने लेसन नंबर 28 कंप्लीट कर लिया है। लेसन नंबर 19 से लेकर लेसन नंबर 20 तक अभी तक जो हम लोगों ने टेंसेस पढ़ा है वो सिर्फ कंटिन्यूअस टेंसेस पढ़ा है। CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंसेस अब तक हम लोग पढ़े हैं डियरेशंस। कंटिन्यूअस टेंसेस, व्हाट इज कंटिन्यूअस टेंसेस? लेट्स अंडरस्टैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलना, कंटिन्यूअस का मतलब होता है मुसलसल कोई कार्य चलते रहना। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कंटिन्यूअस का मतलब है कि यहाँ से आपने कोई कार्य शुरू किया, ये काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एंड यू आर हियर, और आप यहाँ पे हैं। यहाँ पर काम को एंड होना है और ये काम का स्टार्टिंग पॉइंट है। यू आर इन द मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग, आप किसी काम को करने के दरमियान में है, बीचों बीच में है। मतलब आपने पढ़ना शुरू कर दिया और अभी आपने पढ़ाई ख़त्म नहीं किया है, बल्कि अभी आप पढ़ने के दरमियान में है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने खाना खाना शुरू कर दिया, अभी आपने खाना फिनिश नहीं किया है, बल्कि आप खाने के दरमियान में हैं, तो आप कहिएगा कि मैं खा रहा हूँ। अगर ये बात गुज़श्ता कल की थी तो आप बोलिएगा कि मैं खाना खा रहा था, और अगर ये बात मुस्तकबिल की होगी तो आप कहिएगा कि मैं खाना खा रहा हूँगा। डियर स्टूडेंट्स, एक तालिब इल्म अगर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है, अभी वो खेल ख़त्म नहीं किया है, आप ये देखकर कहिएगा फ़लाँ शख्स क्रिकेट खेल रहा है। अगर आज की बात है, माजी की बात है तो खेल रहा था, और अगर मुस्तकबिल की बात है तो खेल रहा होगा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कंटिन्यूअस इसका लुग़वी तर्जमा अगर इसका अलामत ढूंढी जाए तो रहा है, और बोल दीजिए रही है, और ये रहे, ये रहा रही रहे, स्पेशली कंटिन्यूअस को, स्पेशली इन द मिडिल ऑफ डूइंग एनी एक्शंस को बताता है। अगर इसके साथ प्रेजेंट की अलामत लग जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट की अलामत लग जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और फ्यूचर की अलामत लग जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस की 3 किस्में होती हैं। यहाँ पर देखिएगा पी कंटी का मतलब होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर पास्ट कंटी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और तीसरा होता है फ्यूचर कंटी, FUTURE फ्यूचर, और CONTI कंटी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये तीनों जो है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, 100% यूजुअल हैं। अंग्रेज़ी बोल चाल में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। और कंटिन्यूअस 2 प्रकार से यूज़ होता है, एक AV के तौर पर आता है और ड्यूरेशंस एक PV के तौर पर भी यूज़ होता है। AV का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, कंटिन्यूअस टेंसेस एक्टिव वॉइस, और कंटिन्यूअस टेंसेस पैसिव वॉइस। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस की बातें करें तो सभी के अंदर सबसे पहले नंबर पर सब्जेक्ट, यहाँ भी सबसे पहले नंबर पर सब्जेक्ट, और यहाँ भी सबसे पहले नंबर पर आएगा ड्यूरेशन सब्जेक्ट। तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर अगर एक्टिव वॉइस है तो सबसे पहले नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, और ड्यूरेशंस उसके बाद का दौर आता है। ये है हमारा एज, और ये है आर, और ये है ड्यूरेशंस एम। इन सब के साथ आने वाला है ING फॉर्म, ठीक है। बात अगर पास्ट की हो तो इसके पास आएगा वर्स, और ये आएगा ड्यूरेशंस वर्ड, इसके बाद आने वाला है ING फॉर्म, ठीक है ड्यूरेशंस। बात अगर फ्यूचर की हो तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला है WILL विल, और ये बी, और उसके बाद डियर आएगा ING फॉर्म प्लस ING फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट लाना चाहें तो ING फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज़ारम प्लस ING फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वज़वर्ड प्लस ING फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ING फॉर्म है। यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें तकसीम करना पड़ेगा। किस तरह के सब्जेक्ट के लिए इज लाएंगे, और किस तरह के सब्जेक्ट के साथ आर लाएंगे, और किस तरह के सब्जेक्ट के साथ एम लाएंगे। एंड यू नो वेरी वेल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डियरेशंस हम इज को लाते हैं, जैसे कि ही, शी, इट इज़, नेम इज़। और अगर वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर आई हो तो डियरेशंस उसके लिए हम एम लाते हैं।
आई एम। और जो जमा मुतकल्लिम जमा की जितनी भी ज़मीरें हैं वी यू दे नेम्स, उनके साथ डियर स्टूडेंट्स आर आता है। इज़ार एम की तरतीब समझ में आ गई। वही मैंने पोएम में कहा है, आई एम, आई वॉज, आई विल बी, वी आर, वी वर, वी विल बी, दे आर, दे वर, दे विल बी, ही इज़, ही वॉज, ही विल बी, शी इज़, शी वॉज, शी विल बी। ओके, एक दफ़ा और भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वज लाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर लाएंगे। तो सिंगुलर और प्लुरल की तकसीम यहाँ पर है, आईएनजी फॉर्म सब में बराबर है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लुरल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विल बी अकेला है, तमाम सब्जेक्टों के साथ डियर स्टूडेंट्स विल बी आएगा। और ये जो तरतीब मैंने आपको बताया है तीनों कंटिन्यूस टेंसेस का, ये एक्टिव वॉइस वाली तरतीब है। इसके मुआफ़िक अब हम कुछ जुमले बोल करके मश्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जब मैं जुमले बोलूँ तो आप लोग ज़रा इसकी अंग्रेज़ी बनाइएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस अच्छी मिल जाएगी। ये हमारा एक प्रैक्टिकल क्लास है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम स्पेशली ऑल कंटिन्यूस टेंसेस की प्रैक्टिकल क्लास दे रहे हैं। आपको ढेर सारे जुमले बोल करके मश्क करनी है, पोएम याद करना है, उर्दू के जुमलों को इंग्लिश बनाना है, अंग्रेज़ी के जुमलों को उर्दू बनाना है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं। एक बंदा कहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ अभी तकल्लुम के वक्त, तो डियर स्टूडेंट्स आई एम हैविंग बोलेंगे, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच, कुछ भी बोल दो। चलो मैं डिनर की बात कर रहा हूँ, मैं डिनर कर रहा हूँ, आई एम हैविंग डिनर। यहाँ पर आप हैविंग की जगह पर TAKING टेकिंग भी बोल सकते हैं, आई एम टेकिंग डिनर। सो डियर स्टूडेंट्स बताएं, मैं रात का खाना खा रहा हूँ कि इंग्लिश क्या होगी, जल्दी बोलिए प्लीज़। आई एम हैविंग डिनर। और डियर स्टूडेंट्स अगर मुझे ये कहना है कि मैं खाना खा रहा था, तो अब क्या करूँगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एम की जगह वॉज ला दूंगा। आई वॉज हैविंग डिनर। तीसरा, अगर ये कहना है कि मैं खाना खा रहा हूँगा फ्यूचर में, तो कुछ नहीं, सब अपनी जगह पर हैं। यहाँ पर आई विल बी हैविंग डिनर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरीके से अगर वी की बातें करो, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो वी के साथ प्रेजेंट में क्या है, वी आर, वी वर, वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलिएगा, बोलिए वी आर लर्निंग इंग्लिश। और अगर ये बात कहनी है कि हम अंग्रेजी सीख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, आर की जगह पर वर। अगर मुझे कहना है कि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे होंगे फ्यूचर में, तो फिर क्या हो जाएगा, वी विल बी लर्निंग। गेटिंग, समझ रहे हैं ना आप सब लोग। तो यही हमने आपसे कहा है, आई एम, आई वॉज, आई विल बी, वी आर, वी वर, वी विल बी। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आसानी से आप बना सकते हैं। बातें करनी है कि भाई तुम जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यू आर गोइंग। क्या बोलेंगे, यू आर गोइंग। और अगर मुझे कहना है कि तुम जा रहे थे, तो क्या बोलोगे, You were going. और तुम जा रहे होगे कि इंग्लिश बोलिए क्या होगी, You will be going. गोइंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट दे लाऊं, तो दे के साथ मैंने क्या किया, यहाँ आर, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, बोलो, दे आर गोइंग। They are going. और डियर स्टूडेंट्स अगर मुझे कहना है कि वे लोग जा रहे थे, तो अब क्या इंग्लिश आएगी, बोलो, We were going. दे वर गोइंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अगर कहना है कि वे लोग जा रहे होंगे, तो इंग्लिश बोलो क्या होगा, दे इसीलिए मैंने पोएम में कहा है, यू आर, यू वर, यू विल बी, दे आर, दे वर, दे विल बी। कम ऑन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ही के साथ इज का। हाँ, अगले बात की तरफ तवज्जो जाऊंगा। अगला हमारा मिसरा था ही इज, ही वॉज, ही विल बी। प्रैक्टिस करके देखते हैं। ही इज़ फाइटिंग, वो लड़ रहा है।
तो कैसे बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स वो लड़ रहा है? ही इज फाइटिंग। He is fighting. He is fighting. और अगर कहना है कि वो लड़ रहा था तो क्या बोलेंगे? He was He fighting. was fighting. ही वॉज फाइटिंग। और वो लड़ रहा होगा कि इंग्लिश बोल दीजिए। He will be He fighting. will be fighting. Fighting. और वो खाना बना रही है, क्या बोलोगे? शी इज कुकिंग। He is cooking. अगर प्रेजेंट की बात है तो शी इज कुकिंग, अगर पास्ट की बात है तो शी वॉज कुकिंग, She was और अगर cooking फ्यूचर food. की बात होगी तो शी विल बी कुकिंग। She will तो be बोलो शी cooking इज food. कुकिंग, और वो खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग, और वो खाना पका रही होगी, बोलो क्या होगा? शी विल बी कुकिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट नाउ अभी मैंने आपके सामने ऑल थ्री कंटिन्यूस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रिलेटेड मैंने एक जामे मश्क दिया है, एक बेहतरीन पोएम याद कराया है। अल्लाह के वास्ते आप उस पोएम को ज़रूर याद कीजिएगा, और उसके बाद आप जितने भी प्रैक्टिस के जुमले दिए गए हैं उसे बार बार पढ़िएगा और अच्छी तरह प्रैक्टिस करके लाइएगा। तरतीब आपके सामने मौजूद है। और अब मैं आपके सामने यहाँ जिक्र करने जा रहा हूँ कंटिन्यूस टेंसेस पेसिव वॉइस के बारे में। CONTINUOUS कंटिन्यूस टेंसेस पेसिव वॉइस। PV का मतलब पेसिव वॉइस। ऊपर वाले क्या थे? कंटिन्यूस टेंसेस, AV एक्टिव वॉइस था, और यहाँ पर अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये है कंटिन्यूस टेंसेस पेसिव वॉइस। इससे पहले कि मैं आपको इस टेंस को समझाऊँ व्हाइट बोर्ड पर, पहले मैं आपके सामने वही एक पोएम पढ़ता हूँ, शायद आपको वो पोएम सुन करके मज़ा भी आएगा। एक दफ़ा जब मैंने तरन्नुम में पढ़ दिया है तो मैं चाहूँगा कि एक मर्तबा अब जो दूसरा नज़्म मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ये तरन्नुम में ना हो। इज़ारेम, वज़वर, विल बी, शैल बी को यूज़ करते हुए पेसिव वॉइस कंटिन्यूस टेंसेस का कैसे बनेगा? शायर खुर्शीद अनवर कहते हैं, आई एम बीइंग, आई वॉज बीइंग, आई विल बी बीइंग। ये हमारे पोएम का पहला मिसरा है, तवज्जो दीजिएगा। आई एम बीइंग, आई वॉज बीइंग, आई विल बी बीइंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम बीइंग, आई वॉज बीइंग, आई विल बी बीइंग, और वी आर बीइंग, वी आर बीइंग, वी विल बी बीइंग। एक मरतबा ज़रा आप भी फरमाएं, इरशाद फरमाएं, मैं सुनता हूँ। कैसे बोलिएगा डियर शेफ? I am being. I I am being, I was being, I will be being, are being, यहाँ तो आई एम बीइंग, आई वॉज being. बीइंग, आई विल बी बीइंग, यहाँ पर आई एम, आई वॉज, आई विल बी के साथ बीइंग बढ़ाना है। बिना बीइंग का कंटिन्यूस टेंस का पेसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। और वी आर बीइंग, वी वर बीइंग, वी विल बी बीइंग। और दूसरे कपलेट की तरफ तवज्जो चाहूँगा, और वो है हमारा यू आर बीइंग। You are being, you were being, you will be being, और they are being, they were being, they will be being। तवज्जो चाहूँगा, खुर्शीद अनवर कहते हैं कि you are being, you were being, you will be being, they are being, they were being, they will be being। और ज़रा एक मरतबा आप भी इरशाद फरमाए, मैं सुनना चाहता हूँ। You are being. You were You being. are You being, will you be being. were They being, are being. They were being. there will be being. माशाल्लाह, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग यू। आपको सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगले कपलेट की तरफ तवज्जो दूंगा। अब ये हमारा अगला कपलेट आने वाला है, ही इज़ और शी इज़ से रिलेटेड। माइक बंद रखेंगे, तवज्जो चाहूँगा। ही इज़ बीइंग, ही वॉज बीइंग, और ही विल बी बीइंग। He is being, he was being, he will be being, and she is being, she was being, she will be being. Ladies and gentlemen, he is being, he was being, he will be being, she is being, she was being, she will be being। और एक मर्तबा आप भी इरशाद फरमाएं, मैं सुनने के बाद आगे बढ़ता हूँ। Yes. He is He being. is being. We will be being. He will be being. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला हमारा मिसरा है, नेम इज बीइंग, नेम वाज बीइंग, नेम विल बी बीइंग। माइक बंद कर लीजिएगा, तवज्जो चाहिएगा। नेम इज बीइंग, नेम वाज बीइंग, नेम विल बी बीइंग, एंड नेम्स आर बीइंग, नेम्स वर बीइंग, नेम्स विल बी बीइंग। एक मरतबा इरशाद करें, ये रोशन इरशाद फरमाए।
इरशाद फरमाएं। और डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ दिस इज बीइंग, दिस वाज बीइंग, दिस विल बी बीइंग एंड दीज आर बीइंग, दीज वर बीइंग, दीज विल बी बीइंग। तो ये था हमारा एक ब्यूटीफुल इंग्लिश लैंग्वेज में पोएम जो कि मैंने कंटिन्यूस टेंस प्रेसिव वॉइस से रिलेटेड लिखा था। आइंदा कल आपको ये दोनों पोएम याद करके लाने, एक तो आप तरन्नुम के साथ याद कीजिएगा एक्टिव वॉइस वाला, और एक विदाउट तरन्नुम बोल सकते हैं पैसिव वॉइस वाला। पैसिव वॉइस में क्या कहा गया है? कहा गया है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो सबसे पहले नंबर पर जब ये पीसी हो, PCAV देख लेना, नहीं PCPV, PCPV ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस हो तो इसका स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वही इज लाएं या आर या फिर डेरिवेशन। इन सब के बाद मुश्तरका तौर पर बीइंग ज़रूर आएगा, बीइंग के बगैर पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और इसके बाद डिरेक्शंस हमें लाना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद है बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इख्तियारी चीज़ होता है। बाई प्लस सब्जेक्ट क्या है? इख्तियारी चीज़ है। अगर ये कंटिन्यूअस टेंस पास्ट वाला हो, पास्ट कंटी हो, पास्ट कंटी PV, अगर ये हो डिरेक्शंस तो सब्जेक्ट की जगह पर हम यहाँ पर लाने वाले हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे वॉज एंड वर, ठीक है, इनमें से कोई एक लाइएगा। बीइंग तो कंपलसरी है, बीइंग के बगैर पैसिव नहीं बनेगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस वजवर प्लस बीइंग आ गया डिरेक्शंस। और उसके बाद वही वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ज़रूरी है, थर्ड फॉर्म के बगैर पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बाई प्लस सब्जेक्ट का लाना ये इख्तियारी है, अगर लाना चाहे तो लाइए, नहीं लाना चाहे छोड़ दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आगे तवज्जो देते हैं। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटी की बातें करें, फ्यूचर कंटी PV पैसिव वॉइस, ये रिसेंटली आपने कल या परसों आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर भी सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद डिरेक्शंस विल के साथ बी लाएंगे और बी के साथ BEING बीइंग भी लाएंगे, क्योंकि बीइंग के बगैर जल्दी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। साथ में हम लाने वाले हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, ये सभी के साथ आ सकता है बाई प्लस सब्जेक्ट। ये बाई प्लस सब्जेक्ट कहाँ आएगा? बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो स्ट्रक्चर आपके सामने पूरे तीनों टेंसेस का आ चुका है। ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वजवर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। इन्हीं बातों के पेश नज़र हम अच्छी तरीके से एक प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो प्रैक्टिस है ये मैं ओरल देने जा रहा हूँ। ओरल का मतलब ज़बानी मश्क है, तहरीरी मश्क नहीं है। तवज्जो चाहूँगा, अगर मुझे ये कहना है कि अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तकल्लुम के वक्त अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश होगी इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट। क्या होगी बता दीजिए डियर स्टूडेंट्स? इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर मुझे ये कहना हो कि अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही थी, तो अब बताओ क्या इंग्लिश होगी? इंग्लिश was being taught, इंग्लिश was being taught। और अगर मुझे कहना है कि अंग्रेजी पढ़ाई जा रही होगी फ्यूचर में, तो आप बोलिए क्या होगा? इंग्लिश डियर स्टूडेंट्स, एक और जुमले पर तवज्जो चाहूँगा। मेरा घर बनाया जा रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग घर को बिल्ड किया जा रहा है, तो कैसे बोलिएगा? माई हाउस is being built। ये सिर्फ ज़बानी मश्क है, तहरीरी मश्क नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ज़बानी मश्क कराना हो इसलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। माई हाउस इज बीइंग बिल्ट। और अगर मुझे ये कहना है कि मेरे घर को बनाया जा रहा था माजी में, तो आप कैसे बोलिएगा? माई हाउस was being built। और मेरे घर को बनाया जा रहा होगा, माई हाउस विल बी बीइंग बिल्ट। ऐसे बोलिएगा, बोलिए माई हाउस विल बी बीइंग बिल्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक और जुमला देख लीजिएगा। इस किताब का तर्जमा किया जा रहा है, यानी ये अरबी में है तो इसको इंग्लिश में तर्जमा किया जा रहा है, तो दिस बुक इज बीइंग
ट्रांसलेटेड। कैसे बोलिएगा, बोलकर देखिए मेरे साथ, दिस बुक इज बीइंग ट्रांसलेटेड। being सब लोग नहीं translated. बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है। सबको मैंने बोलने की इजाजत दिया, प्लीज मेरे साथ रिपीट करो। और इस किताब को तर्जमा किया जा रहा था। कैसे बोलिएगा, दिस बुक वॉज बीइंग This book was being Translated. translated. और इस किताब का तर्जमा किया जा रहा होगा। बोलिएगा डियरेशंस, दिस बुक This book will will be translated. Into translated. This book being will be translated, being दिस बुक translated. विल बी बीइंग ट्रांसलेटेड। ठीक है This डियरेशंस। book will be being translated. इसी तरीके से एक जुमला है, जैद को सजा दिया जा रहा है। तकल्लुम के वक्त जैद को सजा दिया जा रहा है। जैद इज बीइंग पनिश्ड। That is being will be punished. जैद इज बीइंग पनिश्ड Punished. और जैद को सजा दिया जा रहा था। जैद वॉज बीइंग पनिश्ड और That जैद को was being सजा दिया punished. जा रहा था। जैद विल बी बीइंग पनिश्ड। और डियर स्टूडेंट्स, कहना है कि ये सारे दरख्त काटे जा रहे हैं। दीज ऑल ट्रीज आर बीइंग कट। क्या These बोलोगे, all three, these all three are being और ये cut. सारे दरख्त काटे जा रहे थे। दीज ऑल ट्रीज वर बीइंग कट। These क्या all बोलोगे, दीज ऑल trees ट्रीज were being वर cut. बीइंग कट। और ये सारे दरख्त काटे जा रहे होंगे। दीज ऑल ट्रीज विल बी बीइंग कट। क्या These बोलोगे, all will be cut. यस डियर स्टूडेंट्स, मुझे जल्दी से बताइए, क्या आज जो मैंने आपको दो पोएम सुनाया है, एक तरन्नुम में और एक विदाउट तरन्नुम, एक एक्टिव वॉइस से रिलेटेड और एक पैसिव वॉइस से रिलेटेड, वो दोनों बढ़िया समझ में आया कि आज नहीं रात आया? शाम में मंगाना पड़ेगा यस ना, डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हम पूछ रहे हैं। Yes. आप लोग गैर ज़रूरी बातें करते हैं, इसीलिए मुझे मजबूरन आपकी माइक को बंद करना पड़ रहा है। मैं आपकी माइक को ऑन करने की इजाज़त नहीं दूंगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे आप तहरीरी शक्ल में बताएं, क्या आज का ये वंडरफुल क्लास आपको समझ में आया या नहीं आया? यस या नो में जल्दी से टाइप इन द चैटिंग बॉक्स में जल्दी से अपना जवाब तहरीर कीजिए। खदीजा खातून कहती हैं समझ में आया। आरिफ भी, नौशीन भी कहते हैं, ज़हीरुल इस्लाम, इफ्तिखार, ताहिर, ऑडियरेशंस, नजम साकिब, सब लोग कह रहे हैं समझ में आ गया है। हलीमा, अबू ज़र, यस सर, सबको समझ में आ गया है। बहुत अच्छी बात है। अगर सबको समझ में आया है तो चलिए इसी चैप्टर को अब मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर पार्ट 1 में इसे दिखाता हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या लिखा है, और वहीं से आपको दो काम करने हैं। आज आपको कोई दूसरा सबक नहीं दिया जा रहा है। अंग्रेज़ी लुगत से आज आपको कोई सबक नहीं दिया जा रहा है। रीडिंग वाली किताब से आज आपको कोई सबक नहीं दिया जा रहा है। आपको स्पीकिंग से आज कोई सबक नहीं दिया जा रहा है। आज का सबक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। आइंदा कल क्लास लेने से पहले आपको सिर्फ दो काम करने हैं। एक तो ग्रामर के अंदर मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर पार्ट 1 से कंटिन्यूस टेंसेस के एक्टिव वॉइस वाला पोएम तरन्नुम के साथ याद करके लाना है, और दूसरा इसके पैसिव वॉइस वाला जो पोएम है वो विदाउट तरन्नुम याद करके लाना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के जुमले को बार बार पढ़ना है, कम से कम 10 बार पढ़ना है, लाजिमन पढ़िएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रामर के साथ ट्रांसलेशन ये ज़रूर करके लाना है, क्योंकि आज जो मैं आपको तमरीन देने जा रहा हूँ, इस तमरीन के बदौलत पूरे 9 क्लासेस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उर्दू टू इंग्लिश जो तमरीन आपकी किताब में दी गई है उसे अपनी कॉपी में लिखें और उसका अंग्रेज़ी तर्जमा ज़रूर करें। और इंग्लिश टू उर्दू जो अंग्रेज़ी के जुमले दिए गए हैं उसको भी आप अपनी कॉपी में लिखें और उसका सलेस उर्दू तर्जमा करें। ये दो तमरीन ज़रूर करके लाइएगा। तो दो तमरीन एक्टिव वॉइस में है, दो तमरीन पैसिव वॉइस में है, तो ये दोनों मिलाकर तो 4 तमरीन हो गए। अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ उर्दू टू इंग्लिश वाली तमरीन कर दीजिए। इंग्लिश टू उर्दू आप ज़ुबानी कर लीजिएगा, ख़ुद से देख करके पढ़िए और उसका तर्जमा कर दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन उर्दू टू इंग्लिश एक एक्टिव वॉइस वाली तमरीन और एक पैसिव वॉइस वाली तमरीन ज़रूर करके लाना है। लाएंगे ना? यस या नो में जल्दी जवाब दीजिए चैटिंग बॉक्स में। यस डियर स्टूडेंट्स, तवज्जो चाहूँगा। आपके सामने मैंने मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर पार्ट 1 का प्रैक्टिकल डे पेज नंबर 107 पर ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं लिखा है प्रैक्टिकल डे, मशकिया दिन है।
कहते हैं साहिब किताब अज़ीज़ क़ारीन, सिंपल कंटिन्यूअस के मबाहिस पूरे होने के बाद स्पीकिंग कोर्स के 29वें सबक में मुतलकन कंटिन्यूअस के मुतालिक प्रैक्टिकल डे के नाम से इस सबक को पेश किया जा रहा है, जिसमें कंटिन्यूअस टेंसेस की तर्जमानी के लिए सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब की सेटिंग को नज़म की सूरत में याद कराने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये जल्दी याद हो जाता है और देर तक बाकी रहता है। मश्क तमरीनात भी दिए गए हैं। सबक को गौर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस ऑफ सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस एक्टिवास। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तवज्जो दीजिएगा। कहते हैं साहिब किताब कि ये नज़म कंटिन्यूअस टेंसेज में इस्तेमाल होने वाले किस हेल्पिंग वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा उसकी तरतीब पर मुश्तमिल है। अगर ये बढ़िया समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो जुमले बनाने हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इस नज़म को खूब अच्छी तरह हिफ्ज़ याद करें ताकि आप अंग्रेज़ी लिखने, पढ़ने, बोलने में ग्रामेटिकल मिस्टेक से महफूज रह सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये है वो पोएम जो अभी आपके सामने इब्तिदाई वीडियो में मैंने तरन्नुम में भी गाया था और इसी का आज दर्स हुआ है। वाइट बोर्ड पर इसकी प्रैक्टिस की गई है, स्ट्रक्चर को समझाया गया है। अगर आपके पास मेरी बुक न हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पोएम को आप अपनी कॉपी में महफूज कर लीजिए। आई एम, आई वॉज, आई विल बी, वी आर, वी वर, वी विल बी, you are, you were, you will be, they are, they were, they will be, he is, he was, he will be, she is, she was, she will be, name is, name was, name will be, names are, names were, names will be। यहाँ देखिएगा this is, this was, this will be, and that is, that was, that will be, these are, these were, these will be, those are, those were, those will be। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ ये पोएम पूरा हुआ और चलिएगा डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के जुमले को पेज नंबर 108 पर देखते हैं। साहिब किताब कहते हैं कि प्रैक्टिस द फॉलोइंग सेंटेंसेस के मुंदरजे झैल जुमलों को मा तर्जमा बार बार पढ़िए और खूब मश्क कीजिए। तरीक़ा पीछे बता चुका हूँ। एक मरतबा आप पहले उर्दू बोलें, सामने उसकी अंग्रेज़ी लिखी हुई है उसे देख कर पढ़ लीजिए। 5 मरतबा आप देख कर पढ़िए और 5 मरतबा ज़ुबानी, जैसे मैं आपके सामने इसे करके दिखा रहा हूँ। तो जो चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँगा, आई विल बी स्पीकिंग। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे थे, यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे होगे, यू विल बी स्पीकिंग। वो बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग, वो बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग, वो बोल रहा होगा, ही विल बी स्पीकिंग। वो बोल रही थी, शी इज़ स्पीकिंग, वो बोल रहा डियर स्टूडेंट्स, वो बोल रही है, शी इज़ स्पीकिंग, वो बोल रही थी, शी वॉज स्पीकिंग, वो बोल रही होगी, शी विल बी स्पीकिंग। तीनों ज़मानों की प्रैक्टिस दी गई है। इसे बिल्कुल मक्खी चूसी से काम न करें, सुस्ती से काम न करें, तवज्जो दें, मेहनत करें, बार बार पढ़ें ताकि तीनों कंटिन्यूस टेंसेज आपका क्लियर हो जाए। क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, क्या तुम बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग, क्या तुम बोल रहे होगे, विल यू बी स्पीकिंग। तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे थे, व्हाट वर यू स्पीकिंग, और तुम क्या बोल रहे होगे, व्हाट विल यू बी स्पीकिंग। आगे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, वर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे होगे, विल यू नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हो, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे थे, वाई वर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे होगे, वाई विल यू नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, ट्रांसलेट उर्दू इनटू इंग्लिश के मुंदरजे झैल उर्दू जुमलों को अंग्रेज़ी में आपको तर्जमा करना है। यही वो तमरीन है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये टोटल 20 जुमले हैं। इसे आपको अपनी स्पीकिंग ट्रांसलेशन वाली कॉपी में ज़रूर लिखना है। लिखने के बाद इसका अंग्रेज़ी तर्जमा आपको करके लाना है। क्या तुम मेरे ख़िलाफ़ मंसूबा तैयार कर रहे हो, आर यू प्लानिंग अगेंस्ट मी। तुमसे कौन कह रहा था, हु वाज सेइंग टू यू। मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग। अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, हे फ्रेंड व्हाट आर यू टॉकिंग। हम लोग टूर के बारे में बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट टूर। वी वर बोला हमने, वह लोग हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग विद अस। मेरा भाई अगले हफ्ते दुबई से आ रहा है। माई ब्रदर इज़ कमिंग फ्रॉम दुबई नेक्स्ट वीक। तुम लोग किस मस्जिद में नमाज
डियर स्टूडेंट्स, क्या वह लोग तुमसे कुछ पूछ रहे थे? देखिएगा, क्या वह लोग, वर दे आस्किंग यू समथिंग, वह लोग अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? वाई वर दे नॉट कमिंग नाउ, वह लोग अभी क्यों नहीं आ रहे होंगे है, सॉरी, तो बोलिएगा वाई विल दे नॉट बी कमिंग। और डियर स्टूडेंट, तुम लोग किस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे? माजी की बात है। इन विच मॉस्क वर यू ऑफरिंग द सलाह, वो कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है? विच मोबाइल इज़ ही यूजिंग, तुम्हारे वालिद साहब किस वक्त पढ़ाने जा रहे हैं? व्हाट टाइम योर फादर इज़ गोइंग टू टीच, क्या हम लोग आपका इंतज़ार नहीं कर रहे थे? वर वी नॉट वेटिंग फॉर यू, ट्रेन बहुत लेट चल रही थी, ट्रेन वॉज रनिंग लेट। डियर स्टूडेंट्स, अगला है जुमला, ट्रेन आ रही होगी, ट्रेन विल बी अराइविंग। मैं शादी करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मैरी, क्या तुम लोग अगले हफ्ते पार्टी करने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक। मेरा भाई कार खरीदने जा रहा था, माई ब्रदर वॉज बाइंग, माई ब्रदर वॉज गोइंग टू बाय अ कार, तुम लोग कैसे गाड़ी चला रहे थे? हाउ वर यू ट्रैवलिंग या हाउ वर यू ड्राइविंग, वो लोग, वो इस वक्त क्या कर रहा होगा? व्हाट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम। इसके मुश्किल वर्ड्स हैं और ये अंग्रेज़ी के जुमले, इसे उर्दू करना है आपको। वन डे आई वॉज गोइंग समवेयर, आर यू सोल्विंग न्यूज़पेपर, व्हाट आर दे ड्रिंकिंग, वी आर कंप्रोमाइजिंग। अलग पढ़ते जाइए, इसको समझते जाइएगा, इसका अंग्रेज़ी तर्जमा कीजिएगा, उर्दू तर्जमा कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिएगा। मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर पार्ट 1 में ये जो प्रैक्टिकल डे दिया गया है, साथ ही साथ कंटिन्यूअस टेंसेस की पेसिव वॉइस की भी प्रैक्टिस दी गई है। नीचे अब मुतलकन कंटिन्यूअस टेंसेस के पेसिव वॉइस के बारे में एक जामे मश्क दी जा रही है। साथ ही कंटिन्यूअस टेंसेस के पेसिव वॉइस में किस सब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तरतीब पर मुश्तमिल है। ये नज़म पेश की जा रही है, तरतीब पर मुश्तमिल एक नज़म पेश की जा रही है, इसे भी खूब अच्छी तरह हिफ्ज़ याद कर लें। पोएम अबाउट कंटिन्यूअस टेंसेस पेसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा पोएम आपके सामने मौजूद है, अगर आपके पास बुक ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम बीइंग, आई वॉज बीइंग, आई विल बी बीइंग, वी आर बीइंग, वी वर बीइंग, वी विल बी बीइंग, यू आर बीइंग, यू आर बीइंग, यू विल बी बीइंग, दे आर बीइंग, दे वर बीइंग, दे विल बी बीइंग, he is being, he was being, he will be being, she is being, she was being, she will be being, name is being, name was being, names will be being, names are being, names were being, names will be being। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ दिस इज बीइंग, दिस वाज बीइंग, दिस विल बी बीइंग, दैट इज बीइंग, दैट वाज बीइंग, दैट विल बी बीइंग, दीज आर बीइंग, दीज वर बीइंग, दीज विल बी बीइंग, दोज आर बीइंग, दोज वर बीइंग, दोज विल बी बीइंग। ये सारा अच्छी तरीके से हिफज करके लाइए। प्रैक्टिस द फॉलोइंग सेंटेंसेज, मुंदरजा झैल जुमलों को बार बार पढ़ करके खूब मश्क करें। जैसे मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, तुम पढ़ाए जा रहे हो, यू आर, सॉरी, तुम मुझे पढ़ाया जा रहा था, आई वॉज बीइंग टॉट, और मुझे पढ़ाया जा रहा होगा, आई विल बी बीइंग टॉट। और अगर कहना है तुम पढ़ाए जा रहे हो, यू आर बीइंग टॉट, तुम पढ़ाए जा रहे थे, यू आर बीइंग टॉट, तुम पढ़ाए जा रहे होगे, यू विल बी बीइंग टॉट, वो पढ़ाया जा रहा है, ही इज़ बीइंग टॉट, ही वॉज बीइंग टॉट, ही विल बी बीइंग टॉट, शी इज़ बीइंग टॉट, शी वॉज बीइंग टॉट, शी विल बी बीइंग टॉट। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर सारे जुमले आप पढ़ लेते हैं तो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आर यू बीइंग टॉट, वर यू बीइंग टॉट, विल यू बी बीइंग टॉट, व्हाट आर यू बीइंग टॉट, एंड व्हाट वर यू बीइंग टॉट, व्हाट विल बी बीइंग टॉट। डियर स्टूडेंट्स, ये उर्दू के जुमले, इसकी अंग्रेज़ी बनाना है कि कमरे को सजाया जा रहा है, द रूम इज़ बीइंग डेकोरेटेड। और डियर स्टूडेंट्स, आगे है हमें धोखा दिया जा रहा है, वी आर बीइंग चीटेड, हमारे घरों को बर्बाद किया जा रहा है, वी आर आवर हाउसेज आर बीइंग डेमोलिश्ड। इस तरीके से कर सकते, डिस्ट्रॉयड भी ला सकते हो आप, मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं की जा रही है, माई चाइल्ड इज़ नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, क्या तुम्हारी मदद नहीं की जा रही है, आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वी आर नॉट गोइंग टू। डियर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट, डियर स्टूडेंट्स, वी वर आ जाएगा, मुझे नहीं, आई वॉज हो जाएगा, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, आई वॉज नॉट बीइंग परमिटेड टू गो देयर। इस तरीके से बनेगा। अल्लाह की तमाम जुमलों को जो है उसको अंग्रेज़ी बनाइए, अंग्रेज़ी के जुमले उसे उर्दू बनाइए। इसी के साथ साथ ये सबक पूरा हुआ, 29वां सबक हम लोग कल देखेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सबक पूरा हुआ। आज मैं लुग़त, रीडिंग, स्पीकिंग का कोई सबक नहीं देने जा रहा हूँ। आज के लिए आपका इतना ही सबक होगा, सिर्फ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। ग्रामर से आपको 2 पोएम याद करना है और ट्रांसलेशन में कम से कम 2 तमरीन ज़रूर करके लाना है। यस डियर स्टूडेंट्स, माशाल्लाह आज का ये प्रैक्टिकल डे मैंने बहुत ही उम्दा तरीके से वाइट बोर्ड पर समझाया, प्रैक्टिस दी। दोनों पोएम को, एक पोएम को तरन्नुम में, एक पोएम को विदाउट तरन्नुम आपके सामने ज़िक्र किया और उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक बहुत बेहतर समझ में आया होगा। आज के इस सबक के अंदर कमोबेश 9 क्लासेस के स्ट्रक्चर छुपे हुए हैं, इसीलिए इस पोएम को ज़रूर याद कीजिएगा। बताएं आज का सबक समझ में आया कि नहीं आया? माइक ऑन है, जल्दी बोलें प्लीज़। Yes, yes, यस सर, आ गया। एंड हाउ डिड यू फाइंड माई टुडेज क्लास? आज का ये मेरा क्लास आपको कैसी लगी डियर स्टूडेंट्स? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छे समय। चलिएगा डियर स्टूडेंट, इन्हीं बातों के साथ अब इजाज़त दीजिए अपने टीचर खुर्शीद अनवर को। आइंदा कल फिर किसी सबक के साथ मिलेंगे। देखो मेरे अजीज़ों, ये मेरे लाइव क्लास की वीडियो लेक्चर है। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वाज़ेह रहे कि ये वीडियो लेक्चर सिर्फ़ आपके लिए एक डेमो के तौर पर है। आपको मुकम्मल क्लास की वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। अगर मुकम्मल कोर्स की वीडियो अगर आपको चाहिए, जिससे कि आप किसी भी फारिग वक्त पर आप इस क्लास को ले सकें, बेतरतीब पढ़ाई कर सकें, पहले 0 डे, फिर फर्स्ट डे, फिर सेकेंड डे, तो उसके लिए वाहिद तरीका है कि IIEL देवबंद मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप सिर्फ IIL देवबंद कर टाइप कर दीजिए या सिर्फ IIL ही टाइप कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करिए। 15 अगस्त के मौके पर एक बड़ा शानदार ऑफ़र आने वाला है और इस ऑफ़र के तहत 1100-2500 रुपया को आपको एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। तो पहले से तो 50% का डिस्काउंट था और अब मैं 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने जा रहा हूँ, तो लगभग 75% का डिस्काउंट आपको मिलने जा रहा है। बहुत ही मामूली प्राइस में आप वो कोर्स ले सकते हैं और लेने के बाद में डियर स्टूडेंट्स आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप बेतरतीब और शुरू से सीखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे आएँ, रिकॉर्डेड कोर्स मामूली कीमत पर परचेज़ करें, ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और बेतरतीब पढ़ाई करें। और डियर स्टूडेंट्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं तो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो कुल मिलाकर एप्लीकेशन का डाउनलोड करना बेहद ज़रूरी है ताकि बर वक्त ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकें। इजाज़त दें, मिलते हैं फिर किसी सबक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।